India conducted a series of underground nuclear tests. اگر انڈیا ایٹم بم بناتی ہے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، گھاس کھائیں گے، لیکن اپنا ایک الگ ایٹم بم بنائیں گے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ 1947 میں پارٹیشن تو ہوا، لیکن برٹش گورنمنٹ نے ایک ایسا مسئلہ چھوڑ دیا جو آج تک حل نہیں ہو سکا، کشمیر۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو برٹش گورنمنٹ نے جس بھی ملک کی پارٹیشن کی ہے اس میں ایک ایسا مسئلہ چھوڑا ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، جیسا کہ اسرائیل اور فلسطین کا ہی پارٹیشن دیکھ لے۔ 1948 میں 7.5 لاکھ فلسطینی اپنی ہی ملک میں مہاجر بن گئے۔ 1921 میں ناردرن آئرلینڈ کو یو کے کا حصہ بنا لیا گیا، جبکہ ریپبلک آئرلینڈ کو ایک آزاد ملک قرار دیا گیا، اور ان ممالک کے درمیان بھی آج تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ 2011 میں برٹش پالیسیز نے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور اسی طرح ایسے بہت سارے ممالک ہیں جس کی غلط پارٹیشن برٹش گورنمنٹ نے کی اور وہ آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد ہندو، سکھ اور مسلمانوں کے درمیان شدید فسادات پھوٹ پڑے، جس میں 10 سے 12 لاکھ لوگ مارے گئے، 1.50 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں خواتین کو اغوا کیا گیا، انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی پیریڈ آف ٹائم میں ایسے واقعات ہوئے جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کی 77% پاپولیشن مسلمان تھی اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، جبکہ اس وقت شیخ عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کا لیڈر تھا وہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اس کے پاکستان کے ساتھ تنازعات بڑھتی گئی اور وہ بھارت کے قریب ہوتا گیا۔ اس وقت راجہ ہری سنگھ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کے صوبے میں پشتون قبائلی لوگوں نے کشمیر پر حملہ کیا، اور ان کا مقصد تھا کہ وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے۔ بہت ہی جلد انہوں نے مظفر آباد، راولاکوٹ اور میرپور جیسے علاقوں کو قبضہ کیا۔ اس جنگ میں کشمیریوں نے بھی قبائلی پشتون لوگوں کا ساتھ دیا، اور جب راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد طلب کی تو انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم تمہاری مدد تبھی کریں گے جب تم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کرو۔ 26 اکتوبر 1947 کو راجہ ہری سنگھ نے آفیشیلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کیا، اور کشمیر بھارت کا حصہ بن گیا۔ دسمبر 1947 تک یہ جنگ شدت اختیار کر چکی تھی، اور 1 جنوری 1948 کو بھارت نے یہ معاملہ UN کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کیا، اور یہ الزام لگایا کہ قبائلی پشتون لوگوں نے کشمیر پر حملہ کیا ہے اور عالمی برادری کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ جواب میں پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ کشمیر کا مہاراجہ غیر قانونی طور پر کشمیر کو زبردستی بھارت کا حصہ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے UN سے یہ کہا کہ اگر بھارت زبردستی کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے تو ان لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کسی بھی ملک کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ 1948 کو UN نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور اس میں یہ کہا کہ پاکستان جلد از جلد اپنے فورسز کشمیر سے نکالے۔ بھارت کشمیر میں اپنی فوج تو کم کرے، لیکن امن برقرار رکھنے کے لیے وہ فوج کو رکھ سکتے ہیں، اور کشمیری لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے UN کی سپرویژن میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے۔ 16 دسمبر 1948 کو انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک UN کی سیز فائر پروپوزل پر ایگری ہوئے۔ 1 جنوری 1949 کو UN کی مداخلت کی وجہ سے یہ جنگ رک گئی۔ UN ملٹری آبزرورز کی آرمی کو کشمیر میں تعینات کیا گیا تاکہ سیز فائر کے بعد دوبارہ جنگ شروع نہ ہو۔ کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بھارت کے حصے میں جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ آیا، جبکہ پاکستان کے حصے میں گلگت بلتستان اور آزادی کشمیر کا حصہ آیا۔ یہاں پر یہ جنگ عارضی طور پر ختم ہو گئی اور کشمیر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بظاہر تو یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن یہ ایک شروعات تھی فیوچر میں بہت سارے جنگوں کے لیے اور نیوکلیئر بومز کے لیے۔ نائنٹین 1948 کی شروعات میں ہی بھارت کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ کشمیر کا یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر ہومی بابا کی لیڈرشپ میں ایک نیوکلیئر پروگرام شروع کی۔ لیکن 1948 کے جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایسی بڑی کنفلکٹ نہیں دیکھی گئی، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بہت آرام سے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن 1962 میں انڈیا چائنا وار شروع ہوئی، جس میں انڈیا کو بہت بری شکست ہوئی، اور اس کے صرف 2 سال بعد چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا۔ اور اس کی وجہ سے انڈیا کو پاکستان سے زیادہ چائنا سے خطرہ لاحق ہونے لگا، اور ان کی نیوکلیئر پروجیکٹ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جنگ کے بعد بھارت نے UN اور بڑی سپر پاور جیسا کہ US اور USSR سے مدد طلب کی، لیکن انہوں نے کوئی پرماننٹ گارنٹی نہیں دی۔ 1960s کی شروعات میں دنیا کے 5 سب سے بڑی سپر پاورز امریکہ، رشیا، چائنا، UK
और फ्रांस एटॉमिक पावर्स बन चुकी थी, जिसके बाद इंडिया को ये बात समझ में आ गई कि दूसरों पर इन्हिसार करने से अच्छा है कि खुद एक एटॉमिक बम बना लिया जाए। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी इस एटॉमिक प्रोजेक्ट में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वो पहले दिन से ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पर यकीन रखते थे और उसका ये नजरिया था कि अगर पूरी दुनिया में इज्जत चाहिए तो इसके लिए न्यूक्लियर पावर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वक्त जब इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था तो पाकिस्तान में क्या हो रहा था उसी भी देख लेते हैं। नाइनटीन 1947 में पार्टीशन के सिर्फ एक साल बाद पाकिस्तान का लीडर और फर्स्ट गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में वफात पा गए। 1951 में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया और 1951 से लेकर 1956 तक 5 प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील किए गए। आज़ादी के बाद 9 साल तक पाकिस्तान को अपना एक मुस्तकिल आईन तक न मिला। अगर हम भारत को देखें तो उन्होंने अपना पहला आईन 1949 में ही बनाया था। आखिरकार 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान को अपना पहला आईन मिला, लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से आईन कमजोर होता गया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने सिर्फ 2 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया। 1958 में सिकंदर मिर्जा ने इस आईन को मनसूख करके मार्शल लॉ नाफिज की, जिसके बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसने सिकंदर मिर्जा को बरतरफ कर दिया और मुल्क में पहला फौजी इनकलाब बर्पा किया। अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया, पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगाई और मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी नाफिज की। अयूब खान की हुकूमत ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दबा दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसने मुल्क की इकोनॉमी को तरक्की भी दी। 1962 में अयूब खान ने दूसरा आईन मुतारिफ कराया, जिसमें तमाम इख्तियारात सदर को दिए गए। इससे मुल्क की इकोनॉमी को तो तरक्की मिली, लेकिन मुल्क की पॉलिटिक्स तबाह हो गई। 1965 में अयूब खान ने इलेक्शंस कराए, जिसमें उनकी अपोजिशन में क़ायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना थी, लेकिन इलेक्शन में धांधली की गई, जिसकी वजह से अयूब खान इख्तिदार में रहा। इसी साल 1965 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च की, जिसके तहत पाकिस्तानी फौज को इंडियन कश्मीर में भेजा गया और उनका ये प्लान था कि कश्मीरी लोगों को भारत के खिलाफ बगावत पर उकसाएंगे, लेकिन भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने जम्मू के इलाके अखनूर पर हमला किया। ये बहुत ही अहम जगह थी, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस इस जगह पर कब्जा कर लेती तो भारतीय फोर्सेस की सप्लाई लाइन कट जाती, लेकिन भारत ने एक चाल चली, उन्होंने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया। 8 से लेकर 10 सितंबर तक सियालकोट में टैंक्स की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान न कश्मीर से हट रहा था और न इंडिया सियालकोट और इस्लामाबाद से हट रही थी। 17 से 20 सितंबर के दरमियान ये जंग मजीद बढ़ गई और दोनों अतराफ से हवाई हमले भी शुरू हो गए। 22 सितंबर को यूएन ने इस जंग को रोकने की अपील की और 23 सितंबर को ये जंग रोक दी गई। जंग के बाद भारत का कहना था कि ये जंग भारत ने जीता, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि ये जंग पाकिस्तान ने जीता। चाहे जंग किसने भी जीता हो, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो गई। India is embarked on a course of aggression across the ceasefire line. Indian artillery firing across the border on August 23rd hurled several shells into village Awan of Gujarat district, destroying houses and killing 20 innocent people and injuring another 15. जंग की वजह से मुल्क की इकोनॉमी कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ गई और अयूब खान की हुकूमत कमजोर होती गई। जनवरी 1966 में ताशकंद मुआहिदा हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों ने जंग से पहले वाली सरहदों को बरकरार रखने का फैसला किया। इस माहिदे को पाकिस्तानी लोगों ने सख्त नापसंद किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस जंग के बाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अयूब खान, जो पहले एक मकबूल लीडर था, अब तनकीद का निशाना बन चुका था। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा थे और उसने इस माहिदे की खिलाफ वर्जी की और हुकूमत से अलहदा होकर अवाम की हिमायत हासिल करने लगे। जंग के बाद पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अवाम में महंगाई और बेरोजगारी हद से बढ़ने लगी। अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज शुरू होने लगे। 1969 में अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और याह्या खान ने मार्शल लॉ नाफिज की। जंग से पहले भी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग एहसास महरूमी का शिकार थे और जंग के बाद उनके मसले मजीद बढ़ने लगे। The most common criticism against you abroad is that you are out of touch, that you don't know what's going on in East Pakistan. What is your comment on that? Well, if a head of a state is out of touch with any part of his country, I don't think he has any damn right to remain a head of state. I'm a soldier basically, and you know I'm not a politician. I don't want to stick to this job. The moment I find I'm out of touch with my people, I shall quit. I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities.
1970 में इलेक्शंस कराए गए जिसमें ईस्टर्न पाकिस्तान के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 167 सीट्स हासिल की, जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी PPP ने 86 सीट्स हासिल की। इस लिहाज से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसलिए ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। 25 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू की, जिसमें लाखों बंगाली लोगों को मार दिया गया, जबकि लाखों ने भारत की हिजरत की। इस ऑपरेशन के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के दिलों में पाकिस्तानी लोगों के लिए नफरत मजीद बढ़ गई। भारत पहले से ही मौके की तलाश में था और वहाँ पर तहरीक आज़ादी की हिमायत भी कर रहा था। जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ गई तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और मक्ती बाहमी जो कि एक ग्रुप था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बंगालियों की खूब मदद की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खुली जंग शुरू हुई, जिसमें भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने भी हथियार डाल दिए और यूं मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान के 9 से 12,000 फौजी शहीद हुए और इसके अलावा आम आवाम भी ऑपरेशंस में जख्मी हुए और मारे गए। तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फौजियों और आवाम को भारत ने कैदी बना दिया। इस जंग के बाद पाकिस्तान की आधी एक्सपोर्ट चली गई, क्योंकि पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट ईस्टर्न पाकिस्तान से आती थी और यूं जंगी अखराजात की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। 1972 में पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू 57% गिर गई, तिजारत बंद हुई, इंडस्ट्रीज शटडाउन हुई, बेरोजगारी बढ़ गई, इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान की तरफ रुख करना छोड़ दिया और बैरूनी कर्जों का बोझ पाकिस्तान पर और भी बढ़ गया। इस जंग ने पाकिस्तान को तारीख का सबसे बड़ा धचका दिया और इसके सिर्फ 3 साल बाद 18 मई 1974 को पोखरान राजस्थान में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट, जिसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है, कामयाबी से सरअंजाम दिया। India conducted a series of underground nuclear tests. पूरी दुनिया में भारत की इसी कामयाबी के बारे में बातें होने लगी और पाकिस्तान के लिए ये एक और सरदर्द बन गया। उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और उसने कहा कि अगर इंडिया एटम बम बनाती है तो हम भूखे रह जाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन अपना एक अलग एटम बम बनाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। – 1971 की जंग में हारने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ 1 साल बाद 1972 में मुल्तान में पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट के साथ एक इजलास मुनक़िद की, जिसमें उनको एक सिंपल मिशन दिया गया कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया जाए। पहले कुछ सालों में पाकिस्तानी साइंटिस्ट बहुत जुनूनी थे, क्योंकि ये पब्लिकली एक पीसफुल प्रोग्राम था। यहाँ 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो इस्लामाबाद चौंक गया। रातों रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टेट के तमाम रिसोर्सेज एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में लगा दिए और यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेटलर्जिस्ट था। वो डच यूरेनियम इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहा था। भारत की न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक योहान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऑफर पेश की और उसे गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और इसके साथ अब्दुल कदीर खान ने भुट्टो को और भी अहम जानकारी दी, जिसकी वजह से भुट्टो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट को अब्दुल कदीर खान के पास यूरोप मिलने के लिए भेज दिया। खान ने यूरोप में रहकर वो इल्म हासिल कर लिया था जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। उसने अल्मीलो और गेस्टा में रहकर एक ट्रांसलेटर मेटलर्जिस्ट के तौर पर काम किया था। खान अक्सर सीक्रेट सेंट्रीफ्यूजेस का दौरा करते थे ताकि जिप टाइप गैस सेंट्रीफ्यूज का करीब से मुतालिया कर सके, लेकिन फिर भी वो उसे मुकम्मल तौर पर समझ ना सका। डच इंटेलिजेंस ने बहुत जल्द ही खान की यूरेनियम और एडवांस एटॉमिक डिज़ाइन के बारे में हद से ज़्यादा सवालात पर शक करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में उसको कुछ ऐसा मिला जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल डाली। ब्लूप्रिंट्स ऑफ गैस सेंट्रीफ्यूज, जो कि हथियारों को ग्रेड लेवल तक पहुंचा सकती थी। इसके बाद अब्दुल कदीर खान को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ले तो वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, ये एक बाकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने वाला था और न ही खान किसी से इजाज़त लेने वाला था। वो उसे चोरी करने जा रहा था। उसने सब कुछ कलेक्ट किया, सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन, सप्लायर्स लिस्ट, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और सबसे अहम यूरेनियम एनरिचमेंट की टॉप सीक्रेट्स। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये सामने आया कि वो इतने सारे पेजेस को फोटोकॉपी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क था और वो पकड़ा भी जा सकता था, क्योंकि उसकी एक गलती पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब के ख्वाब को तबाह कर सकती थी। इसलिए उसने सबसे पहले हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को याद किया और बाद में उसके अलग नोट्स बना लिए।
ایک ہی وقت میں اس نے کچھ ڈاکیومنٹس کو پوچس میں چھپا کر خفیہ چینلز کے ذریعے اسمگل کیا۔ 1975 میں پاکستان نے یورپ سے سیکرٹ سینٹریفیوجز خریدنا شروع کر دی، جس سے شکوک پیدا ہوئے۔ امریکی اور ڈچ انٹیلیجنس اب عبدالقدیر خان پر نظر رکھ رہی تھی۔ انفیکٹ امریکی انٹیلیجنس نے ڈچ انٹیلیجنس پر زور دیا کہ وہ عبدالقدیر خان کو اریسٹ نہ کرے، بلکہ اسے اپنی نگرانی میں رکھنے کو ترجیح دی۔ لیکن ڈچ انٹیلیجنس کی تشویش اس وقت بڑھ گئی جب عبدالقدیر خان کو نیوکلیئر ٹریڈ فیئر میں مشکوک سوالات کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے بعد اسے انویسٹمنٹ کے کام سے بھی ہٹا دیا گیا۔ لیکن کلائمیکس تب آیا جب عبدالقدیر خان 15 دسمبر 1975 کو ایک پلین میں بیٹھ کر پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں تقریباً 1000 پیجز کو اسمگل کیا گیا، جس میں کاپی بلو پرنٹس آف سینٹریفیوجز، ویکیوم سیلز اور سرکٹری اسمگل کی گئے۔ جولائی 1976 میں بھٹو نے خان کو کام پر لگا دیا۔ عبدالقدیر خان نے راولپنڈی کی قریب کہوٹہ میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی، جسے بعد میں خان ریسرچ لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ یہ یورینیم انریچمنٹ کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ بھٹو نے زاہد علی اکبر خان کو تعمیراتی کام کا انچارج بنا دیا، جو اس کے ٹرسٹ وردی لوگوں میں سے ایک تھا۔ خان نے بلو پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپریل 1978 تک کے آرل میں P1 گیس سینٹریفیوجز کا پہلا کیسکیڈ بنایا اور پہلی بار یورینیم انریچمنٹ کی۔ جب یہ خبر باہر نکلی تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہو گئی، اور اس کے ساتھ 1979 میں امریکی سیٹلائٹس نے کہوٹہ کمپلیکس کی تصدیق بھی کی۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات آنا شروع ہوئی۔ واشنگٹن نے ڈائریکٹلی پاکستان پر فوجی امداد بند کر دی اور پاکستان پر سخت پابندیاں لگائی۔ UN نے پاکستان کی ایٹمی پروگرام پر سخت تشویش کا اظہار کیا، لیکن کوئی خاص پابندیاں نہیں لگائی۔ فرانس نے ابتدائی دور میں پاکستان کے ایٹمک ٹیکنالوجی دی، لیکن بعد میں امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس نے یہ مدد روک دی۔ باقی ویسٹرن ممالک نے بھی پاکستان کی مخالفت کی، لیکن چائنا نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت کی، جیسا کہ لیبیا کے فارمر لیڈر معمر قذافی نے پاکستان کی کھل کر مالی امداد کی، جبکہ کچھ رپورٹس کے مطابق لیبیا نے پاکستان کو یورینیم کی خریداری میں بھی امداد کی۔ بعد میں پاکستان نے لیبیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے قذافی ناراض بھی ہوا۔ شاہ ایران نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی، کیونکہ اس وقت ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی اور ایران پاکستان کے ایٹم بم کو عراق کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کی حمایت کی، کیونکہ وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک اسلامک ایٹمک پاور ملک چاہتا تھا۔ ترکی نے کھل کر پاکستان کی حمایت تو نہیں کی، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف پابندیوں کی مخالفت ضرور کی۔ اب ان ممالک نے پاکستان کی حمایت تو کی، لیکن دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور جیسا کہ USSR اور یورپی ممالک نے پاکستان پر سخت پابندیاں لگائی تھی۔ لیکن پاکستان کی قسمت اس وقت جاگ اٹھی جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اگر سوویت یونین افغانستان پر قبضہ کر لیتا تو وہ نیکسٹ سپر پاور بن جاتا، اور یہ امریکہ کے لیے پاکستان کے ایٹمک بم سے بڑا مسئلہ تھا۔ اگر USSR افغانستان پر قبضہ کر لیتا تو وہ ساؤتھ ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتا۔ اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوتا، جس کے ذریعے وہ انڈین اوشن تک رسائی حاصل کر لیتا۔ اب امریکہ USSR کے خلاف ڈائریکٹ کارروائی نہیں کر سکتی تھی، انہیں ایک بیس کی ضرورت تھی اور پاکستان ان کے لیے ایک گولڈن چوائس تھا۔ لیکن امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگائی تھی، اس لیے ان پابندیوں کو تھوڑا کم کیا گیا اور پاکستان کی نیوکلیئر پروجیکٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان امریکہ کے انتقام کا ذریعہ بنا۔ CIA نے بلینز آف ڈالرز کے ویپنز، ہنڈرز آف میزائل اور AK-47 پاکستان کی ISI کے ذریعے افغان مجاہدین تک پہنچائے۔ پشاور کے قریب کیمپس میں افغان مجاہدین کو پاکستانی سیکرٹ انٹیلیجنس نے گوریلا وار ٹریننگ دی۔ USSR کی ہیلی کاپٹرز آسمان پر راج کر رہے تھے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے سٹنگر میزائلز افغانستان پہنچ گئے تھے۔ اچانک USSR کے ہیلی کاپٹرز آسمان میں ہی بکھر گئے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ 1989 تک سوویت یونین کو شکست ہو گئی۔ پاکستان نے جشن منایا، لیکن پاکستان نے جنہیں طالبان کو ٹریننگ دی تھی وہی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ USSR ٹوٹ گیا، امریکہ جیت گیا، لیکن پاکستان اس کو اس جنگ کا خمیازہ دہائیوں تک بھگتنا پڑا۔ Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. Track some of the conspirators against bin Laden. It raised questions in the U.S. about Pakistan's friendship and angered many Pakistanis, upset by America's unilateral action. But Cameron Munter, the U.S. ambassador to Pakistan, told VOA the two nations must remain united against a common enemy.
पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता जंगजू तंजीमें खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ गई। TTP पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह बन गया। जंग के बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया। जब अपना मतलब पूरा किया तो पाकिस्तान पर फिर से पाबंदियां लगाई। उस वक्त पाकिस्तान में शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1980s और 1990s की दहाइयों में वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खान के नेटवर्क के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। 1983 में एक डच अदालत ने अब्दुल कदीर खान के खिलाफ केस कर दिया और उस पर न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान ने अब्दुल कदीर खान को देने से इनकार कर दिया और 1985 तक चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स तक रसाई न होने की वजह से ये केस डिसमिस हो गया। 1980s तक अमेरिकन और यूरोपीय एजेंसीज काफ़ी हद तक जान चुकी थी और वो तशवीश में थी, लेकिन खान का ज़्यादातर काम हुपिया ही रहा। अब्दुल कदीर खान ने कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी तो बनाई, लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान में जो यूरेनियम के ज़खायर थे वो एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए नाकाफी थे और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूजेस चलाने के लिए भी हज़ारों पुर्जे दरकार थे जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते थे। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूज। खान ने अपना नेटवर्क यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैलाया। अब लीगली कोई ऐसा मुल्क तो नहीं था कि पाकिस्तान को ये पुर्जे फराहम करे, लेकिन बाद में पाकिस्तान को ये पता चला कि जर्मनी में CES, कल्टोप और बहुत सारी ऐसे फ्रंट कंपनीज हैं जो सेंट्रीफ्यूजेस के इन पुर्जों को स्मगल करती हैं। स्विट्जरलैंड में दलालों ने रिश्वत देकर वैक्यूम पंप्स हासिल किए और दुबई में इस पर एग्रीकल्चरल मशीनरी के लेबल्स लगाकर पाकिस्तान को बेच दिया गया। जहां पर खान स्मगलिंग में मसरूफ था, वहां पर मुनीर अहमद खान ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया और 1982 में चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान पहुंच गए। उन्होंने हुशाब न्यूक्लियर कम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर प्लूटोनियम को तैयार करना था, जिसके लिए वाटर आइसोटोप D2O दरकार थी। अमेरिका ने जब इस पर भी पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान ने नॉर्वे से 15 टन भारी D2O टेक्सटाइल फैक्ट्री के बहाने दरामद की। जब नॉर्वे को शक हुआ तो चाइना ने भूटान के रास्ते 50 टन भारी D2O पाकिस्तान स्मगल की। 1985 तक खुशाब रिएक्टर चलने लगा। अब एक और मसला ये था कि यूरेनियम को कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए सबसे पहली बरतरी नाइजर को दी गई। ये खुश्की से गिरी हुई एक सहराई कौम है जिसमें यूरेनियम के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद है। एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसका कोड नेम शाहीन था, मादनियाती ताजर के बेस में नियामी आया। उसके पास पैसों से भरा एक बैग था। उसका राबिता एक फ्रेंच माइनिंग एग्जीक्यूटिव से हुआ जिसके नाइजीरियन फौज के साथ मशकूक ताल्लुकात थे। मुआहदा आसान था। 500 टन यूरेनियम और पर इंडस्ट्रियल सिरामिक का लेबल लगाकर उसी लीबिया के रास्ते भेज दिया गया। लेकिन मसला ये था कि CIA को बहुत पहले ही पता चल चुका था। नाइजर के बारूदी सुरंगों में CIA की पहले से ही बहुत सारे स्पाइस मौजूद थे। आधी रात को शाहीन और फ्रेंच टीम उसके साथ एक गोदाम में घुस गई। उन्होंने येलो केक के 40 ड्रम्स को बगैर निशान वाले ट्रक्स में लोड किया। काफिला लीबिया की तरफ रवाना हुआ, जहाँ पर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत ने उन्हें महफूज रास्ते फराहम किए। वहाँ पर लीबिया की एक कार्गो तैयारी ने यूरेनियम को कराची के लिए उड़ाया। अब वक्त आया 11 मई 1998 का। सूरज के चमकते किरणों के नीचे जमीन कांप जाती है। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आसमान पर एटॉमिक बम की दुई के बादल छा गए। पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर चलने लगी। भारत ने 5 एटमी धमाके किए। साउथ एशिया में एटॉमिक वार शुरू हुई। दुनिया एक नई क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। ये सब देखकर पाकिस्तान में एक खौफ व हरास फैल गया। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये सब लोग देख रहे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ दिल ही दिल में चीख रहा था, वज़ीर-ए-आज़म साहब वक्त आ गया है। हर लम्हे के साथ दबाव बढ़ रहा था। आर्मी चीफ बार बार ये मुतालिबा कर रहा था कि जवाब देना होगा। दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है। सिविलियन एडवाइजर पैनिक ने कहा, अगर हम धमाका करते हैं तो आलमी पाबंदियां हमें खा जाएगी। दूसरी तरफ चाइना से एक सीक्रेट मैसेज आता है, अगर तुम टेस्ट करते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, फिक्र ना करो। वाशिंगटन से बराह रास्त वार्निंग आई, अगर पाकिस्तान एटॉमिक ब्लास्ट करता है तो तबाहकुन पाबंदियां लगेगी। सोच समझ कर फैसला करो। पर्सनली प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कॉल करते हैं। उसने नवाज शरीफ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर किए और साथ ही ये भी कहा कि हम आपको अरबों डॉलर्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एटॉमिक बम टेस्ट करते हैं तो नताइज आप खुद ही देखेंगे। लेकिन फैसला हो चुका था। 28 मई 1998 को चारी बलूचिस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी सुनसान इलाके में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और फौजी ऑफिसर्स का काफिला धमाके के लिए रेडी खड़ा था। उल्टी गिनती शुरू हुई। 5, 4, 3, 2, 1। There are limits to what even the world's last remaining superpower can achieve, and over the last couple of weeks the United States has received some instruction in those limits, first from the government of India and now today from the government of Pakistan.
Neither has been deterred by U.S. warnings of what the consequences would be if either government conducted nuclear tests. They both went ahead and did it anyhow. The United Nations Security Council met to condemn the nuclear tests carried out by both Pakistan and India and to urge both countries not to undertake further tests. Just a necessity, a must for all the nations to do their best for making treaties like Non-Proliferation Treaty and the ban on all nuclear tests universal. And although Pakistan was not the first to test, two wrongs don't make a right. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment as is required by law. The government of Pakistan had more to lose. That country is smaller, poorer, and much more dependent on international assistance than India. चंद ही घंटों में पाकिस्तान पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और उसने कहा कि नो एड, नो ट्रेड, नो फॉरगिवनेस। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर टोक्यो तक सड़कों पर अमन मार्च शुरू हुई। वाशिंगटन में एक यूएस सेनेटर ने कहा कि हमने साउथ एशिया में एक जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, लोग खुशी से झूम रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमने आज पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, आज पाकिस्तान के लिए फतह का दिन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक नारा बुलंद किया, हमने कर दिखाया, अब पाकिस्तान को कोई मेरे आंख से देख नहीं सकता है। किसी ने अब्दुल कदीर खान को नेशनल हीरो कहा तो किसी ने न्यूक्लियर पायलट। लेकिन ये बात सच है कि अब्दुल कदीर खान ने ना ये सब कुछ पैसे के लिए और ना शोहरत के लिए, उसने ये सब कुछ अपने कौम को महफूज रखने के लिए किया। 28 मई को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक तूफान था। जहां पर दुनिया की नज़र में पाकिस्तान रेड लाइन क्रॉस कर चुका था, वहां पर अपनी ही लोगों की नज़र में पाकिस्तान ने अपने लिए एक अल्टीमेट डिफेंस कायम किया था। ये कहानी पाकिस्तान की जद्दोजहद की उस वक्त की है जब वो एटमी पावर तो बन चुका था लेकिन दुनिया में तनहा खड़ा था। जहाँ पर तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को अकेले छोड़ दिया था और मुल्क में शदीद इकनॉमिक क्राइसिस थी। वहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1999 में कारगिल वार चल गई, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असल गेम 2001 में शुरू हुआ। 9/11 के अटैक के बाद पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर थी कि अब अमेरिका क्या करने जा रहा है। और जब पता चला कि इन सब के पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बताया कि आया तुम हमारे साथ हो या उन दहशतगर्दों के साथ, जवाब देने से पहले नताइज के बारे में सोच लेना। 1998 में चूंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था, कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था और न ही वर्ल्ड बैंक और IMF पाकिस्तान को कर्जा दे रहा था। पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा नहीं उठाया तो पाकिस्तान चंद ही सालों में तबाह हो जाएगा। इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने जॉर्ज बुश से कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इसके साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को $600 मिलियन की एड फराहम की। पाकिस्तान के कर्जों को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। 2001 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान को $10 मिलियन फौजी और माशी इमदाद फराहम की। अब तक जो मुल्क पूरी दुनिया को कह रहा था कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाओ, उसी ने पाकिस्तान से तमाम पाबंदियां हटा दी। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज मंजूर कराने में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। वक्त के साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 और दूसरे जंगी सामान भी देना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक सपोर्ट के बदले पाकिस्तान को ऑपरेशंस में की गई अखराजात के बदले $14 बिलियन फराहम की गई। मुशर्रफ चूंकि हर वक्त अमेरिका के साथ खड़ा होता था, इसलिए फौजी बगावत के बावजूद भी अमेरिका ने हर वक्त उसकी हुकूमत को सपोर्ट किया। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पर डबल साइडेड गेम खेल रहा था। उसने अपने जनरल से कहा कि शेर के साथ खाना तो खाओ, लेकिन अपने साथ लाठी भी रखो। पाकिस्तानी अड्डे अमरीकी फौजियों को दे दी गई, खुफिया मालूमात शेयर की गई और अलकायदा के चंद जनरल्स को भी पकड़ लिया गया। लेकिन मुशर्रफ चालाक था, उसने सिर्फ उतनी ही टेररिस्ट पकड़वाई कि डॉलर की सप्लाई जारी रहे। अमरीकी लीडर्स ने कहा कि हम इस धोखे के बारे में बहुत पहले ही जानते थे, लेकिन हमने इसे नज़रअंदाज किया था कि इस कमज़ोर इत्तेहाद को बचाया जा सके। 2003 में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, और इन सब का मास्टरमाइंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को करार दिया गया। 2004 में मुशर्रफ ने खान को सारा कसूर मानने पर मजबूर कर दिया और उसने सारा कसूर अपने सर ले लिया। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews
with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. बाद में अब्दुल कदीर खान ने लोगों से कहा कि उसे मजबूर किया गया था और परवेज मुशर्रफ ने भी उसे जल्द माफ किया और उसे नेशनल हीरो कहा। बज़ाहिर तो उसे माफ कर दिया गया, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक उसे घर में कैद रखा गया। हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी होती थी। हुकूमत ने उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी और उसकी साख को मिटा दिया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब्दुल कदीर खान को अपने लिए एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। जब एटॉमिक बम बना तो उन्हें नेशनल हीरो कहा और जब चोरी पकड़ी गई तो सारा का सारा कसूर उन पर डाल दिया। जिसके बाद उसने कहा कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें। लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को।